हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करेंगे। A child has a die whose 6 faces show the letters A, B, C, D, E and E. ठीक है, The die is thrown once, मतलब अब यहाँ पे die में क्या है, नंबर्स की जगह क्या है, लेटर्स, 6 लेटर्स हैं। A 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एंड यहाँ पे। The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? Now total number of outcomes कितना है, 6. So A कितनी बार आया, 2 बार. So favorable outcome क्या हुआ, 2. So probability क्या होगा, favorable outcome upon total number of outcomes, that is 2/6, which is equal to 1/3. Correct? Now for the letter D, favorable outcome क्या है, 1, क्योंकि D एक ही बार आ रहा है. So probability क्या होगा, 1/6. Correct? Next, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. मतलब total ball pens कितने हैं, 144. 20 defective है, मतलब 124 क्या है, अच्छे ball pens हैं. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. मतलब नूरी क्या करेगी, अच्छा पेन बाय करेगी, बट जो डिफेक्टिव है वो नहीं बाय करेगी. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. ठीक है, what is the probability that she will buy it and second she will not buy it? मतलब, or in other words, she will buy it, that is the pen is good, and she will not buy it, that is the pen is defective. Correct? So total number of outcomes कितना है, 144. So number of good pens क्या होगा, 144 minus 20, which is equal to 124. Favorable outcomes is 124. Correct? So probability that she will buy it will be number of good pens upon total number of pens, that is 124 upon 126, which is equal to 31 upon 36. 4 से डिवाइड कर दो, 4 3s are 12, 4 1s are 4, that is 4 into 31 124, 4 into 36 is 126. ठीक है. Second, probability that she will not buy it. तो ये क्या होगा, probability that she will not buy it is equal to 1 minus probability she will buy it. So 1 minus 31/36, so क्या हो जाएगा, 36 minus 31/36, that is 5/36. Correct? Next, refer to example 13. ठीक है, example 13 refer करो. Complete the following table. And second, a student argues that there are 11 possible outcomes, that is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this statement? Justify your answer. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है. मतलब ये जो देखो ये क्या है, इवेंट एंड सम ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं एंड नंबर्स कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. एंड नीचे है प्रोबेबिलिटी. सो 2 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी है 1/36, 8 की दी हुई है 5/36 एंड 12 की है 1/36. आपको रिमेनिंग नंबर सम के आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढने. एंड सेकेंड, जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/11. क्या वो करेक्ट है, यू नीड टू जस्टिफाई. सो ये टेबल मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है कि कैसे 2 डाई होता है तो क्या क्या आपके पेयर्स कैसे बनते हैं, मैंने सिखाया. सेम यहाँ पे पेयर्स हैं. सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 6 into 6, that is 36. डाइस 1 में 6 नंबर्स हैं, डाइस 2 में 6 नंबर्स हैं. सो पेयर क्या होगा, 6 multiplied by 6, that is total 36 outcomes. So let the required probability be P of number of possible outcomes क्या हो गया, 6 into 6, that is 36. मतलब डाइस 1 में 6 नंबर्स, डाइस 2 में 6 नंबर्स, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज दोनों का प्रोडक्ट 36. तो टोटल आउटकम्स इज 36. So let the required probability be P of E. Now sum of 2 dice is 3. अब 3 ब्लैंक था. So क्या क्या होगा, जब कौन से पेयर्स होंगे जिसका सम 3 होगा, 1, 2 and 2, 1, which is equal to 2. So favorable outcomes कितने हैं, 2. Probability क्या होगी, favorable outcome upon total possible outcomes, that is 2/36. ठीक है, अब यहाँ पे आप खाली 36 लिखोगे, इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म नहीं करोगे. क्यों,
क्योंकि जो सेकेंड सब पार्ट है उसमें बोला है कि डिनोमिनेटर आपका 11 है, आपको ये प्रूव करना है कि सारे जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे उसके डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 36, ठीक है। सो इसको अभी रिड्यूस लोएस्ट टर्म मत करो। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 4, मतलब कौन से पेयर्स हैं जिनका सम क्या होगा 4। सो 1/3, 2,2 and 3,1, करेक्ट, 1,3, 2,2 and 3,1 दैट इज 3। सो फेवरेबल आउटकम इज 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/36, करेक्ट, एज इट इज रखो। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 5। अब आप देखो आपने जो बनाया उसी को देखो कि कौन से पेयर्स 5 होंगे। सो टोटल 4 पेयर्स होंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/36। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 6। सो फिर आप देखो पेयर्स क्या होंगे, सो आपको मिलेगा टोटल 5। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36, करेक्ट, एज इट इज रखोगे। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 7। सब अब देखोगे कौन से पेयर्स, कितने पेयर्स हैं जो जिसके सम 7 आ रहे हैं, टोटल 6 होगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 9। टोटल कितने होंगे पेयर्स 4, ठीक है। वो आप पेयर्स यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, आंसर में आप पेयर्स लिखोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूँ क्योंकि ये आपको खुद से समझना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4/36। नेक्स्ट, सम ऑन 2 डाई इज 10। सो टोटल 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/36, ठीक है। सो सम ऑन 2 डाई इज 10। सो टोटल कितना होंगे 3 पेयर्स होंगे, सो ये होगा 3/36। सम ऑन 2 डाई इज 11। टोटल क्या होगा 2, ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/36, ठीक है। सो नाउ अब देखो सब डिनोमिनेटर में 36 आया। सो जो दूसरा है कि वो जो बच्चा बोल रहा है कि 1/11 होना चाहिए, क्या वो सही है कि गलत। सो क्या है वो गलत है। दैट इज नो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 36 एंड नॉट 11, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर को रिड्यूस मत करना, पूरे फ्रैक्शन को रिड्यूस मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कांस्टेंट 36 चाहिए। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट। समझ आया, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हमने रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म नहीं किया। नेक्स्ट, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, मतलब एक रुपए का कॉइन था, उसको हमने 3 बार टॉस किया। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है, मैंने हेड्स टेल हेड्स टेल हेड्स टेल। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब हनीफ जीतता है अगर सारे टॉसेस क्या है वो सेम रिजल्ट देते हैं, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, ठीक है। मतलब जो 3 बार आपने कॉइन टॉस किया, तीनों बार हेड आया या फिर तीनों बार टेल आया, अगर ऐसा हुआ तो ही हनीफ जीतेगा, नहीं तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, ठीक है। अब देखो, लेट टी डिनोट टेल्स एंड कैपिटल एच डिनोट हेड्स, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, देयर विल बी 8 पॉसिबल आउटकम्स। कैसे 2⁻3। एक कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड या टेल, एंड वो 3 टाइम टॉस किया गया, इसीलिए raised to 3 विच इज इक्वल टू 8, दैट इज 2 multiplied by 2 multiplied by 2। अब देखो ये कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेड हेड और हेड लिख लो, ठीक है। फर्स्ट आउटकम हेड 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 लिख लो। अब 8 लाने हैं, कैसे लाओगे, यहाँ पे हेड एज इट इज रखो, फिर यहाँ बीच को क्या करो टेल कर दो। सो हेड टेल हेड, फिर हेड दोनों हेड एज इट इज रखो, यहाँ टेल कर दो। सो हेड हेड टेल। सिमिलरली फिर यहाँ पे इसको भी टेल कर दो, तो टेल टेल टेल, ये दोनों हेड रखो, इसको टेल कर दो। सो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। समझ आए, वैसे ही आपको 8 आएंगे। तो क्या होगा पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड एंड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड,
टेल 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 एंड टेल हेड टेल। समझ आया? मतलब कि एक बार सपोज आपने यहाँ पे टेल रखा, तो फिर उसको टेल यहाँ ले आओ, फिर टेल यहाँ ले आओ, फिर टेल दोनों जगह ले आओ, टेल बीच में खाली ले आओ। समझ आया? ऐसे आपको 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। नाउ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 8. So let the event that हनीफ भी lose the game be E. मतलब हनीफ गेम लूज करेगा, उस इवेंट को E ले लो। सो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे? 6, क्योंकि क्या था, हनीफ तभी जीतेगा जब H H H एंड T T T आए। सो 8 में से वो दोनों तो निकल जाएंगे इवेंट, तो कितना बचा? 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/8। समझ आया? 6 फेवरेबल थे और टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने थे? 8। So 6/8 which is equal to 3/4. 2 3s are 6 and 2 4s are 8. समझ आया? ये भी न्यू टाइप का सम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब सेम 2 बार डाई थ्रोन किया, मतलब आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब कि क्या एक भी जगह 5 नहीं आना चाहिए। मतलब सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ 5 आ गया, सो ये इग्नोर कर दोगे। सिमिलरली यहाँ दूसरे डाई में 5 आया, सो ये पूरा इग्नोर कर दोगे, ठीक है। एंड सेकेंड, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो 5 आना ही है। हिंट, throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as same experiment. Obviously, एक डाई को आप 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को आप एक साथ थ्रो करो, बात एक ही है। जैसे एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस करो, रिजल्ट सेम आएगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 36। नाउ क्या है आपको ढूंढना? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 11। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नॉट कम अप ईदर टाइम, सो उसमें से ये 5,5 निकाल दोगे, सो 11 बचा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि जब आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो, सो एक बार 5,5 आपने काउंट कर लिया, सो वापस नीचे आने के टाइम 5,5 रिपीट हो जाएगा ना, इसीलिए 5,5 को एक ही बार इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो फेवरेबल तो 5 कितनी बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 36 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 25। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 25/36, ठीक है। व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी? 25/36। नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन में कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो 11 बार आ रहा है, एटलीस्ट मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा। सो ये 5,5 जहां 5 2 बार आ रहा है वो भी इंक्लूड करोगे। सो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स 11, सो प्रोबेबिलिटी 11/36, करेक्ट। सो नाउ अब आपको क्या ढूंढना था कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब एक या उससे ज्यादा। तो 5 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी इंक्लूड करोगे। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 11। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 11/36, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, that is 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3. समझ आया? मतलब क्या बोले कि जो 2 coins हैं उसको जब simultaneously टॉस किया तो हमें 3 possible outcomes मिले, that is 2 heads, 2 tails या फिर 1 head और 1 tail. So इसकी probability क्या हो रही है? 1/3. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? Because 1 of each can result in H, T and TH. मतलब कि यहाँ पे खाली बोला है 1 of each क्या होगा? या तो head and tail आया या तो tail and head आया। So total number of possible outcomes क्या हो गए? 4. So probability क्या होगी? 1/4. समझ आया? Next, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. मतलब क्या हुआ? एक ही डाई फेंका हमने एंड 2 पॉसिबल आउटकम्स है कि ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए। सो बोल रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि
द टू आउटकम्स आर पॉसिबल। देखो 1 2 3 4 5 6 और कितना है 1 3 एंड 5 3, इवन कितने हैं 2 4 एंड 6 3, मतलब 3 ऑड नंबर 3 इवन नंबर, सो हाफ हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी, इसीलिए ये वाला सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, सो व्हाट आई विल लर्न टुडे, आज हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है यहाँ पे। सो हैव अ गुड रिविजन, सारे चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू कर लो। अभी जो भी डाउट है आप ऐप में पूछो, जो नहीं समझ आए वापस से सेशंस देखो। ठीक है, तो पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका बोर्ड एग्जाम है, सो बोर्ड एग्जाम में आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन और मैथ्स रोज प्रैक्टिस करो, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ टाइम टेबल में मैथ्स एवरी डे रखो। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।